بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 67 اقساط سن چکے ہیں۔ اب کس نمبر 68 ملاحظہ فرمائیں۔ تمہاری رائفل ہمیں پکڑوا دے گی شیر خان۔ خاموش رہو، شیر خان نے اسے ہلکا سا ڈانٹ دیا۔ وہ ایک چوک میں سے گزر گئے، دن کا وقت تھا، شہر میں ہلکی پھلکی ٹریفک جاری تھی، لوگ پیدل، سائیکل، رکشہ اور دوسری ٹرانسپورٹ کے ذریعے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ کمانڈو شیر خان کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی لاری اڈے پر چل کر جموں جانے والی لاری کا پتہ کرنا چاہیے۔ منگلی نے ایک طرف کو اشارہ کیا جہاں بہت سی لاریاں کھڑی تھی۔ شیر خان اسی طرف کو چلا۔ ایک لاری میں مسافر بیٹھے تھے۔ شیر خان نے ایک بوڑھے سکھ سے جموں جانے والی لاری کے بارے میں پوچھا۔ اس نے پیچھے کھڑی ایک خالی لاری کی طرف دیکھ کر کہا، ایا جاؤ گی؟ ٹین کی چھت کے نیچے پنجوں اور فرش پر بہت سے ہندو سکھ مسافر بیٹھے تھے۔ منگلی اور شیر خان بھی ایک طرف کو الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ شیر خان نے منگلی کو کچھ روپے دیے اور کہا، پتا کرو کہ اگر ٹکٹ مل رہے ہو تو جموں کے 2 ٹکٹ لے آؤ۔ منگلی نے ایک چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر پوچھا کہ جموں کے ٹکٹ کہاں سے ملیں گے۔ اندر سے ایک سکھ نوجوان لڑکا جیکٹ میں ملبوس بیٹھا، کاپی پر کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ کہنے لگا، بی بی کتنے ٹکٹ چاہیے؟ لاری آدھے گھنٹے کے بعد جائے گی۔ منگلی نے 2 ٹکٹ خریدے اور شیر خان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ لاری آدھے گھنٹے بعد جائے گی۔ شیر خان بڑے محتاط انداز میں ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے ٹکٹ لے کر جیب میں رکھ لیا اور منگلی سے کہا، ذرا جائزہ لو، ہمیں کوئی مشتبہ نظروں سے دیکھ تو نہیں رہا؟ منگلی نے نظریں گھما کر چاروں اطراف غور سے دیکھا اور بولی، مجھے تو کوئی خاص آدمی نظر نہیں آیا۔ وہاں 1 گھنٹہ گزر گیا، تب کہیں جا کر جموں جانے والی لاری میں مسافروں نے بیٹھنا شروع کیا۔ ایک سکھ اونچی آواز میں بولے جا رہا تھا، جموں جموں جموں، چلو ایک سواری، لاری لاری جا رہی ہے۔ شیر خان اور منگلی بھی لاری میں سوار ہوئے اور پچھلی سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ شیر خان کی رائفل کو دیکھ کر سکھ ڈرائیور نے ہنس کر پوچھا، وراج جی لائسنس والی ہے نا؟ ہاں جی مہاراج، لائسنس کول ہے۔ شاباش، خیر بیٹھو مہاراج۔ شیر خان کے جواب نے ڈرائیور کو مطمئن کر دیا۔ لاری روانہ ہوئی تو منگلی نے بھی سکون کا سانس لیا۔ سارا راستہ امن و امان سے گزر گیا۔ دن ڈوب رہا تھا کہ راستے میں جگہ جگہ کھڑی ہونے کے بعد لاری جموں شہر میں داخل ہوئی اور اپنے اڈے پر جا کر رک گئی۔ شیر خان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ کسی ہوٹل میں ٹھہر سکتے تھے، مگر وہ کسی ایسے ہوٹل کی تلاش میں تھے جو شہر سے ذرا باہر واقع ہو۔ بازاروں میں چلتے چلتے آخر انہیں ایک 2 منزلہ درمیانے درجے کا ہوٹل نظر آ گیا۔ یہاں انہوں نے میاں بیوی کی حیثیت سے ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ کمرے میں ایک ہی پلنگ بچھا تھا۔ منگلی نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اپنی پتنی بنایا ہے، اس بات کو بھول نہ جانا۔ شیر خان نے دیوار کے ساتھ لگے پرانے صوفے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں صوفے پر سوؤں گا، تم پلنگ پر سو جانا۔ سردی کا موسم تھا، پلنگ پر ایک لحاف اور ایک کمبل بھی طے کیا ہوا پڑا تھا۔ شیر خان نے منہ ہاتھ دھویا، منگلی نے بھی ہاتھ منہ دھو کر بالوں میں کنگھی پھیری۔ اتنے میں ہوٹل کا سکھ ملازم لڑکا آ گیا۔ بھوجن کمرے میں کریں گے یا نیچے آ کر؟ شیر خان نے کہا، یہیں پر لیا پتر، اور ساتھ ہی لڑکے کو 10 روپے کا نوٹ نکال کر دیا۔ یہ تمہارا انعام ہے۔ 10 روپے اس لڑکے کے لیے بہت تھے۔ وہ بڑا خوش ہوا اور سلام کر کے چلا گیا۔ منگلی پلنگ پر لحاف اوپر کیے بیٹھی تھی کیونکہ وہاں پر سردی کافی تھی۔ شیر خان کمبل اوڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ بتاؤ کہ ہم آشا کی تلاش کہاں سے شروع کریں؟ میں تو اس شہر میں پہلی بار آیا ہوں، منگلی بولی۔ میں بھی صرف ایک بار یہاں پر پہلے آئی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری بیٹی کا سراغ یہاں کے کسی جرائم پیشہ لوگوں کے اڈے سے مل سکے گا۔ وہ کیوں؟ شیر خان نے پوچھا۔ منگلی نے کہا، وہ اس لیے کہ آشا کو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارا باپ جموں جیل میں کسی جگہ پر قید ہے۔ ظاہر ہے وہ یہاں پر آئی ہوگی تو اس قسم کے لوگوں سے ہی رابطہ کیا ہوگا جنہوں نے اسے بتایا ہوگا کہ شیر خان نام کا کوئی قیدی یا مفرور یہاں پر نہیں آیا۔ شیر خان نے سار کو آہستہ سے جھٹک کر کہا، تم نے فضول بات کی، بہرحال رات گزر جانے دو، کل صبح میں خود سراغ لگانے نکلوں گا۔ منگلی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد شیر خان نے بتی بجھائی اور کمبل اوڑھ کر صوفے میں گھس گیا۔ منگلی پلنگ پر لحاف میں دبک گئی۔ وہ بہت تھکے تھے، بہت جلد انہیں نیند آ گئی۔ صبح شیر خان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ رات کو کسی وقت اٹھ کر منگلی نے اس کے اوپر لحاف ڈال دیا۔
और खुद कंबल ओढ़कर पलंग पर सिमटी समटाई सो रही थी। शेर खान ने जल्दी से अपना लिहाफ उस पर डाल दिया। मंगली ने आंखें खोल दी। वो मुस्कुराई। मेरी जान, क्यों इतनी मोहब्बत जिता रहे हो मुझसे? जब इस मोहब्बत का कोई फायदा नहीं है, शेर खान ने हाथ को झटकते हुए कहा। ठीक है, आराम से पड़ी रहो। एक लड़का नाश्ता लेकर कमरे में आया तो शेर खान ने उसे 10 रुपए का एक और नोट दिया और इधर उधर की बातों के बाद उससे पूछा, क्यों भाई, यहाँ आसपास कहीं कोई देसी शराब मिलती है या नहीं? हम तो जब कभी भी पीते हैं तो घर की निकली हुई शराब ही पीते हैं। ये वलायती शराब तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। सिख नौजवान कहने लगा। हाँ जी, आप कहें तो मैं आपको ला देता हूँ। शेर खान ने नफी में सर को हिला दिया। नहीं यार, होटल में जो देसी शराब सप्लाई होती है वो ठीक नहीं होती। तुम हमें कोई ठिकाना बता दो, मैं खुद वहां जाकर देखभाल करके ले आऊंगा। तुम नहीं जानते ये लोग मिलावट भी करने लगे हैं। शेर खान का मतलब यही था कि लड़का कोई ऐसी देसी शराब का अड्डा बता दे ताकि वो वहां पर जाकर इस मकसद के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करे जिस मकसद के लिए वो इस शहर में आया है। सिख नौजवान ने बताया कि यहाँ से 2-4 मील फासले पर एक तालाब वाला मंदिर है। उस मंदिर के पीछे एक तकिया है, वहाँ देसी शराब निकाली जाती है और इस शहर को सप्लाई होती है। सिख लड़के के जाने के बाद मंगली मुस्कुराई। मैं समझ रही थी कि तुम अपने वास्ते देसी शराब का पूछ रहे हो, मगर अब मालूम हुआ कि तुम जराइम पेशा लोगों का अड्डा मालूम करना चाहते थे। शेर खान ने कहा, खुदा बचाए शराब से। मंगली ने हंस कर कहा, जिन लोगों की किस्मत में शराब नहीं लिखी होती वो यही कहा करते हैं। मंगली ने शेर खान से छेड़खानी का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। इन दोनों ने नाश्ता किया और उसके बाद शेर खान बोला, तुम कमरे में रुको, मैं तालाब वाले मंदिर की तरफ जाता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। बहरहाल तुम यहाँ से कहीं मत जाना। शेर खान ने राइफल पलंग के नीचे छुपा दी और मंगली को तायद की कि वो इस राइफल का खास ख्याल रखे। वो होटल से निकलकर बाजार में एक तरफ को चल पड़ा। सिख नौजवान ने उसे रास्ता थोड़ा बहुत समझा दिया। शेर खान अंदाजे से सड़क पर चलने लगा। चौक में वो बाएं जानब एक बाजार में आ गया। बाजार के आगे खेत आ गए। यहाँ से शेर खान ने एक आदमी से तालाब वाले मंदिर का पूछा और कुछ देर बाद वो तालाब वाले मंदिर पर पहुँच गया। उसके पीछे 2-4 घने दरख्तों के नीचे शेर खान ने कुछ आदमियों को बदन पर तेल मलते वर्जिश करते देखा। वो समझ गया कि यही वो तकिया है जिसकी उसे तलाश थी। वो अखाड़े के करीब से होता हुआ उस चबूतरे पर आकर बैठ गया जो पीपल के दरख्त के नीचे बना था। यहाँ एक आदमी गाय को चारा डाल रहा था। सामने एक कोठड़ी थी जिसके बाहर चारपाई पर एक सरमुंडा बूढ़ा हिंदू कंबल ओढ़े बैठा गिलास में चाय पी रहा था। कोठड़ी में से एक वर्दिशी बदन वाला हिंदू बाहर निकला तो उसकी निगाह शेर खान पर पड़ी। इस अजनबी को अपने डेरे पर देखकर वो सीधा उसके पास आ गया। शेर खान ने खुद को मफरूर मुजरम जाहिर किया और आशा का हुलिया बताकर उनसे पूछा, मगर उन्होंने कोई ठीक से जवाब न दिया। इस तरह शेर खान मुख्तलिफ लोगों से मिला मगर कोई कामयाबी न हुई। वापस आया तो मंगली उसकी राह देख रही थी। कुछ पता चला आशा का? उसके जवाब में शेर खान ने नफी में सर हिला दिया और सोफे पर बैठ गया। मंगली भी उसके पास आकर बैठ गई। मंगली कहने लगी, शेर खान, मेरा दिमाग कहता है कि आशा इस शहर में नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। शेर खान ने मंगली की तरफ देखा। तुम्हारे दिमाग पर मुझे एतबार नहीं, मेरी मोहब्बत पर तो एतबार है ना? मंगली ने बड़े लगाव से कहा। शेर खान ने उसका हाथ अपने कांधे से परे हटा दिया। तो फिर तुम क्या कहते हो? तुम्हारा क्या इरादा है यहाँ पर हमारा ज्यादा देर रहना? मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। हो सकता है यहाँ की पुलिस को भी तुम्हारे फरार की इत्तला पहुँच चुकी हो और वो तुम्हारी तलाश में हो। पुलिस की तरफ से शेर खान अंदर ही अंदर ज्यादा फिक्रमंद था, मगर उसे अपनी बेटी को भी तलाश करना जरूरी था। शायद यही शेर खान की जिंदगी का सबसे अहम मिशन था। उसने अहद कर लिया कि आशा अगर उसे जिंदा मिल गई तो वो उसे साथ लेकर जिस तरह भी हो पाकिस्तान वापस चला जाएगा और उसकी शादी करके बाकी जिंदगी अपने घर की चारदीवारी में गुजार देगा। शेर खान कहने लगा, ये शहर हमारे लिए अजनबी है। पुलिस बकौल तुम्हारे मुमकिन है कि हमारी घात में हो। अगर अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, किसी को हमने अपने पीछे लगे हुए नहीं देखा। मैं किससे पूछूं, किस बात से अंदाजा लगाऊं कि मेरी बेटी कहां पर होगी? मंगली भी सोच में डूब गई और आखिर में कहने लगी, एक कोशिश मुझे भी करके देखने दो। तुम अब आराम करो, मैं निकलूंगी आशा की तलाश में। तुम कहां जाओगे? शेर खान ने निगाहें उठाकर पूछा।
मैं सन्यासन हूँ, किसी भी मंदिर या धर्मशाला में जाकर मालूमात हासिल कर सकती हूँ। इन जगहों पर अक्सर लावारिस औरतें आती हैं, या कम अज कम उनके बारे में सुराग लग सकता है कि कौन सी औरत आई थी और अब कहां पर है। शेर खान ने कोई जवाब न दिया, खामोश रहकर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। दोपहर के खाने के बाद शेर खान कमरे में ही रहा और मंगली अपने उसी सन्यासी वाले लिबास में होटल से निकल खड़ी हुई। काफी देर तक वो शहर में इधर उधर घूमती रही। जब वो शहर से जरा बाहर उस मजाफाती बस्ती में आई तो उसे एक बरसाती पहाड़ी नाले के किनारे ऊंचे टीले के दामन में एक मंदिर दिखाई दिया। ये मंदिर शहर के दूसरे मंदिरों से हटकर था और इसी किस्म के मंदिर में मुजरमाना सरगर्मियों का मरकज हुआ करते हैं। वो मंदिर की तरफ चल दी। मंदिर की ड्यूटी में एक हट्टा कट्टा आदमी गरम चादर लिए अपने भारी भरकम जिस्म को लपेटे चौकी पर बैठा पत्थर की छोटी सी कोंडी में जाफरान पीस रहा था। एक भरपूर जवान सन्यासन को अपनी तरफ आते देखकर उसका हाथ अपने आप रुक गया। बातें खुल गई, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसके चेहरे की कैफियत देखकर मंगली समझ गई कि ये मंदिर किस किस्म का है और ये महान्नत और उबाश आदमी है। मंगली ने महान्नत को प्रणाम किया और कुछ कहे बगैर ड्यूटी में से गुजर गई। आगे छोटी सी कोठड़ी में माता शेरा वाली का बुत पत्थर की दीवार में उभरा था, जिस पर काफी संदूर मल दिया गया था। मंगली ने बुत को माथा टेका, कुछ अश्लोक पढ़े, फिर महान्नत के पास आकर हाथ बांधकर बोली, महाराज प्रसाद दीजिए। साथ ही में मंगली ने 15 रुपए निकाल कर महान्नत को पेश कर दिए। महान्नत ने रुपए चौकी के नीचे रख ली और एक थाली में से मीठे चने और कुछ रतन जूत के फूल निकाल कर मंगली को देकर कहा, सन्यासन देवी, तुमको यहाँ पहले कभी नहीं देखा कि शहर से आई हो। मंगली महान्नत के करीब बैठ गई। पुजारी जी, सन्यासी लोगों का कोई शहर नहीं होता, वो किसी जगह पर एक रात से ज्यादा क्याम नहीं करते। महान्नत ने खरल में से थोड़ा सा जाफरान उंगली पर उठाकर सन्यासन के माथे पर लगा दिया और बोला, देवी माता, तुमसे मिलकर बड़ी खुश हुई। मंगली इस उबाश शख्स के शैतानी जज्बात को मजीद उबारना नहीं चाहती थी। मंगली कहने लगी, महाराज, जब पुजारी जी खुश हो जाएं तो देवी माता भी खुश हो जाती हैं। महान्नत ने जल्दी से मंगली का हाथ पकड़ लिया। देवी, तुम तो देवी माता की अवतार हो, क्या बात कह दी है तुमने, मगर अभी मैं तुमसे इतना खुश नहीं हुआ। मंगली ने आहिस्ता से अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, वो वक्त भी आ जाएगा पुजारी जी। पुजारी तो आपे से बाहर होने लगा। इस वक्त मंदिर में कोई पूजा करने के लिए नहीं आता। वैसे भी पुजारी किसी औरत और खास तौर पर किसी जोगन सन्यासन टाइप की औरत से घुल मिलकर बातें कर रहा हो तो लोग यही समझते हैं कि वो योग दिव्या के इसरार हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुजारी ने थोड़ा करीब होकर कहा, अंदर चलकर बातें करते हैं। पुजारी बेचैन होकर उठने लगा तो मंगली ने उसे हाथ से पकड़कर वहीं पर बिठा लिया। पुजारी जी, इतनी बेचैनी अच्छी नहीं होती। आज की रात मैं आपके मंदिर में ही रुकूंगी। पुजारी महंत की एक बार फिर बातें खुल गई। फौरन चौकी पर बैठ गया और मंगली के हुस्न जमाल की तारीफें शुरू कर दी। फिर कहने लगा, मेरे तो भाग खुल गए कि आप जैसी खूबसूरत देवी सन्यासन हमारे मंदिर में रात गुजारेगी। तुम फिक्र ना करो, मैंने अपनी कोठड़ी में बिजली का हीटर भी लगवा कर रखा है। मंगली को इस उबाश पुजारी के नापाक अज़ाइम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उससे कोई जरूरी मालूमात हासिल करना चाहती थी। उसने पूछा, पुजारी जी, मेरा एक दास है, उसकी बच्ची गुम हो गई है। जवान लड़की है, खुशशक्ल है, बाल सुनहरी सुनहरी हैं, उर्दू पंजाबी बोलती है, कहीं तुमने उसे तो नहीं देखा? पुजारी सोचने लगा, फिर बोला, यहाँ तो मैंने इस हुलिये की किसी लड़की को नहीं देखा। वैसे मैं पता करके बता सकता हूँ। कहाँ से पता करोगी तुम? मंगली ने पूछा तो पुजारी ने कहा, एक ठिकाना है। कौन सा ठिकाना है? मंगली ने सवाल किया। पुजारी समझ गया कि अगर उसने सन्यासन को वो ठिकाना बता दिया तो वो शायद रात यहाँ पर ना गुजारे। वो कहने लगा, ये तो मैं तुम्हें रात को ही बताऊंगा, और वो भी अपने बिजली वाले हीटर के सामने बैठकर। मंगली ने कहा, अच्छी तरह से सोच लो पुजारी जी, अगर तुम मुझे उस ठिकाने के बारे में अभी नहीं बताओगे तो मैं रात इस मंदिर में नहीं गुजारूंगी। पुजारी तो कांप उठा, जल्दी से बोला, ऐसे जुल्म न करना देवी। बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ा अय्याश डोगरा जागीरदार रहता है। उसकी उम्र तो काफी है मगर अय्याशियों से बाज नहीं आता। इस शहर में जब भूली भटकी औरतें दाखिल होती हैं तो इस जागीरदार के आदमी
उस औरत को किसी न किसी तरह वरगला कर उसके पास ले जाते हैं और फिर डोगरा जागीरदार की हवेली से उस लड़की या उस औरत को कभी रिहाई हासिल नहीं होती। इस जागीरदार का एक नौकर मेरा वाकिफ है, वो मुझसे कोई राज नहीं छुपाता। मैं कल उससे बात करूंगा, हो सकता है इस लड़की की तुम्हें तलाश है वो जागीरदार की हवेली में हो। वहाँ दूसरे मुल्कों के स्मगलर टाइप लोग भी अक्सर आते जाते रहते हैं। मंगली ने पूछा कि ये हवेली किस जगह पर है। उसके जवाब में पुजारी ने कहा, तुम अकेली वहाँ जाने का सोचना भी ना, नहीं तो वो पुजारन लड़कियों को भी नहीं छोड़ता। हिंदू पुजारी बड़ा ही चालाक था। अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, डोगरा जागीरदार की हवेली यहाँ से काफी दूर पहाड़ों में एक बड़ी पुरअसरार जगह पर है। वहाँ पर तो पुलिस भी नहीं जाती। जागीरदार ने सबका वजीफा लगा कर रखा है। उसका नाम क्या है? मंगली ने पूछा। पुजारी आंखें घुमाते हुए बोला, ये तो मैं तुम्हें रात को ही बताऊंगा, बिजली के हीटर के सामने बैठकर। इस बिजली के हीटर के सामने इसको बैठने का बड़ा शौक था। मंगली ने दिल में इस उबाश पुजारी को मोटी सी गाली दी और कहा, अगर तुम मुझे उस जागीरदार का नाम नहीं बताओगे तो मैं रात को मंदिर में नहीं आऊंगी। अय्याश पुजारी फिर मार खा गया, कहने लगा, तुम बाज नहीं आओगी तो सुनो, सिर्फ नाम ही बताऊंगा। उसका नाम अर्जन दास है, मगर सब उसे राजा साहब कहकर बुलाते हैं। यही उसका नाम मशहूर है। मंगली उठकर जाने लगी तो पुजारी बाहर तक उसके साथ आया। देवी रात को दर्शन जरूर देना। एक बात याद रखना कि राजा साहब की हवेली का रुख न करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। फिर मैं भी तुम्हें उस अय्याश के अड्डे से नहीं निकाल सकूंगा। तुम्हें जिस औरत की तलाश है उसका ठिकाना मुझे राजा साहब का नौकर ही बता सकता है। मैं कल उसे मंदिर में बुलाकर बात करूंगा। रात को दर्शन जरूर देना, मैंने बिजली का हीटर लगा कर रखा है। मंगली ने दिल में एक और पुजारी को गाली दी और वहां से निकल आई। होटल में वापस आकर शेर खान को डोगरा जागीरदार राजा साहब के बारे में सारी तफसीलात बता दी। शेर खान बोला, जब इस जागीरदार की हवेली का पता मालूम नहीं, वो पहाड़ों में किस जगह पर है, तो हम कैसे जा सकते हैं? मंगली ने कहा, ये तो किसी जगह से भी मालूम किया जा सकता है। शेर खान कहने लगा, मेरा ख्याल है कि तुम रात को मंदिर जाने की बजाय कल दिन में उस पुजारी से मिलो। कह देना कि किसी वजह से रात को नहीं आ सकी और दिन के वक्त उससे जागीरदार की पुरअसरार हवेली का पता मालूम करना। फिर इकट्ठे वहां पर चलेंगे, हो सकता है आशा का वहीं से कोई सुराग मिल जाए। वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी बेटी उस अय्याश जागीरदार के कब्जे में होगी, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो ये जागीरदार अब तक हलाक हो चुका होता। मंगली ने यही फैसला किया कि वो कल पुजारी से दोबारा मिलेगी। अगले दिन मंगली दोपहर के वक्त मंदिर पहुंची तो पुजारी का मुंह लटका देखा। मंगली को देखते ही पुजारी ने हसरत भरे लहजे में कहा, देवी मैंने तो बिजली का हीटर सारी रात लगा कर रखा, तुम्हारा इंतजार किया। जरा सी आहट होती तो कोठड़ी से बाहर निकल कर देख लेता कि शायद तुम आई हो। मंगली ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दें, बस एक जरूरी काम पड़ गया था, इसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। रात को मैं एक घर से 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकल सकी। वादा करती हूँ कि आज रात को जरूर आऊंगी। पुजारी यकदम खुश हो गया, कहने लगा, क्यों ना अभी थोड़ी देर के लिए अंदर चलकर बैठे बातें करें, बिजली का हीटर बिल्कुल ठीक चलता है। मंगली ने दिल में गुस्से से कहा कि मैं तो तुम्हें उसी बिजली के हीटर पर भून कर खा जाऊंगी। ऊपर से मुस्कुरा कर कहने लगी, नहीं पुजारी जी, अभी मुझे एक जरूरी जगह पर जाना है। रात को जरूर आऊंगी, बल्कि शाम को ही आ जाऊंगी, मगर ये बताओ कि राजा की हवेली कहाँ पर है? पुजारी एकदम चौकन्ना हो गया, समझ गया कि ये सन्यासन सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। पुजारी बोला, देवी तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकती, मैं तो तुम्हें राजा साहब की हवेली का पता रात को ही बताऊंगा। मंगली बोली, मैं अपने आप ही पता कर लूंगी। पुजारी ने कहा, पता कर लेने से क्या होगा? तुम्हें जिस लड़की की तलाश है उसका पता मेरी मदद के बगैर तुम कभी हासिल नहीं कर सकोगी। तुम राजा की हवेली में गई तो तुम्हें भी गायब कर दिया जाएगा और फिर तुम्हारी लाश भी बाहर से कहीं मिलेगी। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? मंगली ने भी एक ही फैसला कर लिया, कहने लगी, पुजारी मैं तुमसे खुलकर बात करती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मंदिर में रात बसर करूँ तो तुम मुझे अपने खास आदमी की मदद से पता करके बताओ कि सुनहरी बालों वाली गोरे रंग की लड़की राजा की हवेली में मौजूद है या नहीं। उसके बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। पुजारी भी बड़ा गुरु आदमी था, फौरन मुस्कुरा कर बोला, देवी अगर तुमने बात खुलकर की है तो मैं भी तुमसे कोई राज नहीं छुपाऊंगा।
میں نے آج صبح ہی راجا کے خاص نوکر کو یہاں بلوا کر سب کچھ معلوم کر دیا ہے۔ کیا معلوم ہوا تمہیں؟ منگلی نے بےتابی سے پوچھا تو پجاری نے یوں ہی جھوٹ موٹ کہہ دیا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس حلیے کی ایک لڑکی 3-4 دن ہوئے ہیں اس حویلی میں لائی گئی اور اب بھی وہیں پر موجود ہے۔ منگلی کو پہلے اس مکار پجاری کی بات پر یقین نہ آیا، پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے اس نے کسی لالچ میں آ کر سچ بول دیا ہو۔ پھر بھی اس نے اپنے دامن کو کھینچتے ہوئے کہا، تو پھر پہلے اس بات کی تصدیق کر لیں کہ وہ لڑکی راجا کی حویلی میں ہے۔ تو پجاری ہنسا، پگلی دیوی، تم نے ساری زندگی یوں ہی ادھر ادھر پھرتے گزار دی، تبھی تمہیں عقل نہیں آئی۔ اس لڑکی کی شکل جو تم نے مجھے بتائی ہے ادھر ہی دیکھی گئی ہے۔ اس ڈوگرا جگیردار کی حویلی میں اس قسم کی عورتوں کے لیے اندھا کنواں بنایا گیا ہے۔ جو عورتیں ایک بار اس میں گر جاتی ہیں پھر کوئی اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ منگلی دل میں پجاری کو گالیاں دیتی یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ آئی کہ مہاراج اب رات کو ہی ملاقات ہوگی۔ ہوٹل میں آ کر جب اس نے شیر خان سے ذکر کیا کہ راجا کی حویلی میں بقول پجاری کے ایک سنہری بالوں والی گورے رنگ کی لڑکی موجود ہے تو شیر خان کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، پھر سنبھل کر بولا، ہو سکتا ہے پجاری نے جھوٹ بولا ہو، مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی وہاں پر نہیں، اگر ہوتی تو جگیردار کی لاش ابھی تک مل گئی ہوتی۔ عائشہ اپنی عزت کے لیے جان قربان کرنا جانتی ہے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے دوسروں کی جان لینا بھی جانتی ہے، میں نے اسے یہی تربیت دی ہے۔ منگلی کو شیر خان سے محبت تھی، عائشہ اسے اپنی بچیوں کی طرح پیاری تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہی سمجھتے ہو تم یہاں پر بیٹھو، میں راجا کی حویلی کا ایک چکر لگانے ضرور جاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ پجاری جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے بھی بڑی پکی اطلاع ملی تھی کہ عائشہ جموں پہنچ گئی ہے، چونکہ یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں، عین ممکن ہے کہ اس ڈوگرے جگیردار کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گئی ہو۔ شیر خان نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے کہا، ایسا ممکن ہی نہیں، عائشہ ایک شیرنی ہے، وہ اکیلی ہی 4 آدمیوں کو ہلاک کر سکتی ہے۔